So let us begin with chanting of Omkar 3 times. Sai Ram. So let me share the screen so we can use this Android board and we can solve the questions. Okay, so let me take the new one. So what we are doing, we are solving the problems of resolution of firm. Yesterday we tried to solve some of the entries, some of the questions of the entries. Today we will solve few more questions of entries. Then we will solve the problems of main question, that is preparation of realization account, partners capital accounts and cash account. So today first we will solve question number 12. This question number 12. This is Rohit, Kunal and Sarthak. Have you got it? Are partners in a firm sharing profits and losses. Sorry, they decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and third party liability have been transferred to realization account. This is the common condition in every question. We don't have to pass the transfer entries. We have to pass only realization entries. So first transaction, this is the Kunal agreed to pay his wife's loan. Wife loan is external liability. So Kunal agreed. So Kunal is paying a liability. So entry will be realization account debit to Kunal's capital account. To Kunal's capital account. Liability paid by Kunal or wife's loan paid by Kunal. So that will be debited to realization account and credited to Kunal's capital account. Transaction number B, total creditors of firm were rupees 40,000. Creditors worth rupees 10,000 were given a piece of furniture costing rupees 8,000 and full and final settlement. तो 40,000 में से 10,000 तो चले गए हमारे, सेटल हो गए फर्नीचर से. रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%. यानी 30,000 के जो बचे उसमें से हमने जो पेमेंट किया 10% माइनस करके किया, तो 3,000 और कम हो गया, तो हमने पेमेंट किया 27,000 का. तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट paid to creditors 27,000. Is it clear, Sairam? Yes sir. समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला 10,000 तो माइनस हो गया जो सेटल हो गया फर्नीचर से, बाकी का जो बचा था उसको हमने 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया है. नेक्स्ट वन, रोहित had given a loan of rupees 70,000 to the firm which was duly paid. Rohit is a partner. Partner's loan is not transferred, it is separately paid. So entry will be Rohit's loan account debit to cash or bank account. Cash oblique bank account being Rohit's loan paid by firm. Okay.
that is 70,000. Rohit's loan account debit to cash oblique bank account 70,000. Now next one is a machine which was not recorded in the books. Unrecorded asset है, कोई प्रॉब्लम मतलब ट्रांसफर नहीं करते, रियलाइजेशन सेम प्रोसेस में होता है उसका. Taken over by Kunal at rupees 3,000, whereas it is expected value was rupees 5,000. एक्सपेक्टेड वैल्यू को कुछ नहीं करना, जितने में एग्रीमेंट हुआ उतने से हम एंट्री करेंगे. असेट टेकन बाय ए पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स नेम इज कुणाल, सो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट Kunal's capital account debit to realization account. Unrecorded asset taken by Kunal and agreed value is rupees 3,000. So we will pass the entry by rupees 3,000. Okay. Now the formatted debit balance of rupees 15,000 in profit and loss account. Debit balance means loss है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पार्टनर्स आर 3. कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, आर्स यानी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सार्थक एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. अमाउंट ऑफ लॉस है 15,000, तो इधर तो आ जाएगा 15,000 लॉस में. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है इसमें, इसका मतलब है दे आर इक्वल पार्टनर्स. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी assumed to be equal, so this loss will be transferred equally to all partners capital accounts. Is it clear, Sairam? Yes, sir. Now last transaction is this. E के बाद दिया उसने F, ट्रांजेक्शन नंबर F. सार्थक paid realization expenses of rupees 16,000 out of funds. Who was to get a remuneration of 15,000 for completing the resolution process and was responsible to bear all the realization expenses. इसके साथ फर्म ने एग्रीमेंट किया था कि वो सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा, उसके बदले फर्म उसको 15,000 देगी. उसने खर्च किया 16,000, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हम तो केवल उसको क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, जितने का एग्रीमेंट हुआ था. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी सार्थक्स कैपिटल अकाउंट. realization expenses paid by Sarthak, agreed amount is 15,000, so we will pass the entry with rupees 15,000. हो गया ये साईराम? Anyone has any doubt in this question? सर. हाँ जी बोलिए. सर हम उसमें बीच में डिस्काउंट था, सर उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे? नहीं, कोई एंट्री नहीं है. डिस्काउंट का मतलब उतना पेमेंट नहीं किया, कोई डिस्काउंट में थोड़ी रहा है उसमें. अपने आप ही डिस्काउंट ऐड हो गया ना, प्रॉफिट हो गया ना. आपको 30,000 के 27,000 दिया आपने, 3,000 का प्रॉफिट अपने आप हो गया आपको उसमें. ओके, नाउ न्यू वन. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ 13 नंबर. देखो छोटा सा इनको जरा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 13. बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख. जो असेट्स ट्रांसफर किए रियलाइजेशन में, उनकी बुक वैल्यू रुपीस 1 लाख. ठीक है. 50% ऑफ असेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर अतुल. 50% आर टेकन बाय अतुल. टेकन बाय अतुल. अतुल इज ए पार्टनर. ठीक है. एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. एट 20% डिस्काउंट. इसका मतलब समझ लीजिए पहले
1 लाख का 50%, तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 में से 20% माइनस कर दीजिए, तो 10,000 उसका 20% माइनस हो गया, तो 50,000 की असेट्स इसने ली 40,000 में। क्लियर है क्या ये? सही राम? सर ठीक है। अब क्या हुआ आगे? 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट्स, यानी 50,000 की बची, जो बची थी असेट तो 50,000 की थी, उसका 40% यानी कितना हो गया? 20,000। 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ये बिक गई हमारी 30% के प्रॉफिट पे, तो इसका 30% प्लस करना है, वो हो जाएगा 6,000। तो ये बिक गई 26,000 में आपकी। ठीक है। अब बची कितनी? 50 के ऊपर चली गई, 20 की 70 की चली गई, बची 30,000 की। अब क्या कह रहा है बाद में? रिमेनिंग असेट्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ remaining assets, 40% of the remaining assets are sold at a profit of 30% on cost, ना? 5% of the balance being obsolete। ठीक है, ये समझ में आया कि आपका भी इतना? सही राम? यस सर। 1 लाख की यस सर। असेट थी, 1,50,000 50% तो यहाँ चली गई हमारी, यानी 50,000 तो यहाँ क्लियर हो गया। 50,000 की बची, उसका 40% यानी 20,000 यहाँ क्लियर हो गया। तो जो रिमेनिंग असेट्स है उनकी वैल्यू बची है, बुक वैल्यू 30,000। अभी हमारे पास बुक वैल्यू की एसेट 30,000 की, उसके लिए कह रहा है वो 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलेट, यानी 5% इसकी खत्म हो गई। 30,000 का 5% कितना होगा? 1,500। तो बचे कितने? 28,500। ठीक है। 5% ऑफ रिमेनिंग असेट्स ऑब्सोलेट, रियलाइजिंग नथिंग एंड रिमेनिंग असेट्स आर हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कुल मिला के 28,500 की नो एंट्री होगी आपकी। समझ में आ गया आपको? ये क्रेडिटर को दे दिया आपने फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम में, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं करना। तो पहली एंट्री काय के लिए करेंगे? इसके लिए आप जो पार्टनर ने ली, अतुल ने ले ली, तो पहली एंट्री होगी अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स टेकन बाय अतुल, और रुपीस हमने कितना अमाउंट निकाला था इसका? 40,000। ठीक है, 40,000 में लिया अतुल ने। दूसरा एंट्री होगी जो हमने कैश में बेची ये वाली एसेट 20,000 की, प्रॉफिट में बेची 26 में, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। बाद का जो बच गया आपका 30,000 की जो बची है लास्ट लॉट, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सेटल्ड बाय क्रेडिटर हो गया, इसलिए कोई एंट्री नहीं है उसकी। फुल वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो नथिंग इज टू बी टेकन और गिवन, सो नो एंट्री। उसके लिए कोई एंट्री नहीं बची आपकी। सर हाँ जी बोलिए। ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ओके, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं एंट्री वाला, फिर हम लोग करेंगे मेन क्वेश्चन। ये आप लोग करना प्रैक्टिस, फिर बाद में डाउट होता तो मुझसे पूछने के लिए आता। ये करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एंट्रीज। इसमें देखिए नंबर ए क्या कह रहा है 15 नंबर में? पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन on dissolution of firm of P and Q after assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। ठीक है। स्टॉक रुपीज 2 लाख, P took over 50% of stock at a discount of 10%, remaining stock bought sold at a profit of 25%। ये में दो एंट्री होंगी, पहला तो होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग स्टॉक टेकन बाय पी, तो जो टोटल स्टॉक था वो 2 लाख का था, उसका 50% यानी 1 लाख का स्टॉक इसने लिया है 10% डिस्काउंट पे, माइनस 10,000, 10% ऑफ 1 लाख
तो इसके अकाउंट में डेबिट होगा 90,000। ठीक है, इस स्टॉक इज टेकन बाई पी फॉर रुपीज 90,000। पहली एंट्री तो इसकी हो गई फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टॉक के लिए। इसमें दूसरा पार्ट है वो कैश में बेचा है। बचा हुआ जो स्टॉक है वो 1 लाख का है, 50%। उसका क्या किया, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 1 लाख का जो स्टॉक था वो 1,25 में बिक जाएगा। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये हमारा 125,000 आ गया। क्लियर है आप लोग को ये? सही राम? यस सर। दूसरी एंट्री नंबर बी, डेबिटर्स ऑफ रुपीज 2,25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000, 20,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव टू बी बैड। प्रोविजन का कुछ नहीं करना, 2,25,000 में से हमको 20,000 के प्रोविजन चलेंगे हमारे, तो 2,05,000 रुपए मिलेंगे कुल मिला के। तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा मिलेगा 2,05,000। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा आपको? 2,05,000। हाँ जी बोलिए, ठीक है क्या? यस सर। अब प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं होना, अब तो भरनी बंद हो रही है। तो 2,25,000 के डेप्टर्स थे, उसमें से आपके 25,000 20,000 का बैड डेट्स हो गया। इसका मतलब ये कि 2,05,000 मिलेंगे आपको इनसे, क्योंकि वो प्रोविजन तो आपने अलग साइड में ट्रांसफर किया हुआ, याद है कि आपको? जब ट्रांसफर करते हैं तो डेप्टर्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन अलग से ट्रांसफर करते हैं, उसको एडजस्ट नहीं होता है अब। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000 sold for 15 lakh through a broker who charge 2% कमीशन। तो 15 लाख में से 2% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 30,000। तो आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,70,000। दैट्स ऑल। कितना पैसा आया फर्म के पास? 14,70,000। उसके बाद है मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट पर दिया है, किस पर दिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे कुछ प्राइस होता तो उसको ले लेते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट 60,000 रियलाइज 125%, यानी 15% ज्यादा मिला, 25%, सॉरी 60,000 का 25% आएगा 15,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 आएगा। 25% एक्स्ट्रा मिल गया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल ऑफ 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ 10,000। क्या किया इसका? कुछ दिया नहीं है। गुडविल ऑफ 75,000 प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000। क्या करेंगे इसका? नो एंट्री। कोई रियलाइजेशन नहीं मानेंगे जब तक, कोई रियलाइज वैल्यू नहीं दिया तब तक, है ना, नो वैल्यू, जीरो मान लेंगे कुछ रियलाइज वैल्यू नहीं दिए तो। ओल्ड फर्नीचर फर्स्ट रिटन ऑफ कंप्लीटली, ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया ओल्ड फर्नीचर। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 ओल्ड फर्नीचर के लिए। सारे काम पहुंच गया। डबल ज्वाइन हो गया, डबल ज्वाइन हुआ क्या? सही रहा।
हाँ भाई सायराम यस सर, डबल आ गया था। क्या करना है अब? सर एक लीव कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सर एक एक लीव कर दीजिए, कोई भी एक। 2 मिनट आगे क्या? यस सर। यस सर, अब सही हो गया। सही हो गया क्या अनुराग? यस सर। रिकॉर्ड 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 नहीं हुआ, इससे गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ कुछ हो रहा है। क्या सर हो फिर रहा से है? दो आ गया सर। सर फिर से दो दो आ आ रही गया। है? दो आ रही है अभी? यस सर। यस सर, दो आ गए। अभी तो मैंने क्लिक किया था। सर एक और फिर से लीव कर दीजिए। ओके। ये रवि दुबे कौन है? सायराम अभी भी डबल है क्या? यस यस सर। सर। क्या करें अभी? सर कोई भी एक को लीव कर दीजिए सर। मुझे तो एक लेकिन सर आपके क्रोम पे दो साइट खुली हैं सर। तुम पर अच्छा अच्छा। इसको कैनवस करता हूँ। हाँ दो इसको लिख दो। सर अब ठीक है। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस सर। यस सर। पता नहीं कल से कौन कौन सी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई रवि दुबे आ रहा दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आपको? नो सर। नो सर। रवि दुबे पता नहीं कौन है, साइबर क्राइम को देना पड़ेगा ये कुछ, पता नहीं कौन कौन ट्राई कर रहा है। सर कल कल दीपा भी हुआ था सर। कल दीपा में मेरी क्लास में भी कोई आया था, एक तो पार्थ काबरा के नाम से आ रहा था कोई, फिर एक और किसी मोहित के नाम से आया था, शर्मा के नाम से। ये रवि दुबे कोई है आउटसाइड सत्संग विद्या विहार ना। ठीक है, पता नहीं क्या बेवकूफी करने में लगे रहते हैं लोग। ओके, इस साइबर क्राइम को देना पड़ेगा कि कौन कौन आगे ट्राई करता है फालतू, बताना पड़ेगा हम लोग को। विजयपुर थाना साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसके लिए। ओके नाउ ये आपको दिख रहा है क्या? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया तो नहीं दिखेगा कैनवास है ना। स्क्रीन शेयर करूं दोबारा से? कितना टाइम बचा है अभी? अभी तो टाइम है। प्रेजेंट नाउ, एंटर स्क्रीन, शेयर, शेयर। ओके, ये बिना शेयर किए भी आता है क्या इसका वो स्क्रीन आपके पास? नो कैनवास सर, सर बिना प्रेजेंट किए नहीं आता। बिना प्रेजेंट के नहीं आता होगा, ठीक है। ओके, अभी पहले मैं सॉरी वापस से स्टॉप प्रेजेंट करता हूँ, एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ आपको पहले, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है मुझे। तो इसको कैनवास को बंद करूँ। आपकी अटेंडेंस ले लूँ, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। So I have to talk to your parents why students are not joining the class. इतने कम बच्चे क्या हैं? Let me do something. So पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं, कौन कौन है आज? आज तारीख है 16/10। आदित्य काबरा एब्सेंट है, अंजलि मिश्रा प्रेजेंट है, अनुराग जैन प्रेजेंट है, दीपांशी प्रेजेंट है। उसके बाद अंजलि अंशिता साहू एब्सेंट है ना?
ऐसा तो नहीं है। हर्षी सिंह गुर्जर प्रेजेंट है। कार्तिक विजयन, ईशान से एब्सेंट है। कार्तिक प्रेजेंट है। केशव तापड़िया प्रेजेंट है। मानवी प्रेजेंट है। नमन सोनी एब्सेंट है। नंदिनी एब्सेंट है। नीरज साहू एब्सेंट है। नियति प्रेजेंट है। पलक काबरा एब्सेंट। पार्थ काबरा एब्सेंट। ठीक है। प्रियांशु वर्मा एब्सेंट। प्रियांशु वर्मा प्रेजेंट है। और संध्या राजपूत एब्सेंट। शरद राय एब्सेंट। श्रेष्ठ यादव एब्सेंट। सिद्धार्थ जैन प्रेजेंट। उसके बाद उमंग शर्मा एब्सेंट। विकास कुमार मीना एब्सेंट। विश्वास शर्मा एब्सेंट। ठीक है। ओके, now let me share the screen. So two more transactions are there. 3. H1 H and Z, an old customer whose account of rupees 20,000 written off as bad debts, paid 60%. तो हमको पैसा मिल गया 60%. अनरिकॉर्डेड असेट की तरह ट्रीट करो इसको। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 12,000 60% मिल गया उसका, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज P undertook to pay Mrs. P's loan. अपने पार्टनर ने अपनी वाइफ का लोन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वही होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। लास्ट है द क्रेडिटर ट्रेड क्रेडिटर्स रुपीज 1,60,000, टोटल वैल्यू 160,000 है। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी at an agreed valuation of rupees 54,000 and cash in full settlement of their claims. तो देखो इसमें क्या करना है आपको, क्रेडिटर्स का अमाउंट टोटल 160,000। इसमें से वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स मींस क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 80,000। ओके, accepted plant and machinery at an agreed valuation of rupees 54,000। उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी 54 का लिया, तो डिफरेंस बच गया 16,000 का। इस 16,000 हम उनको पेमेंट करेंगे। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, एंड कैश है ना, तो एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16,000। अच्छा, 16,000 का तो डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, तो फिर कुछ एंट्री नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, 80,000 का था, 54 नहीं सॉरी कितना हो रहा है, 26 बचेगा, ये गलत हो गया उससे। दिस विल बी 26,000। देखो ना डिफरेंस कितना आएगा, 80,000 54 का प्लांट एंड मशीन लिया उन्होंने, कितना हो गया 26 बचा, उसमें से 16 का डिस्काउंट दे दिया, तो बचे हुए 10,000 का हम पेमेंट करेंगे उनको कैश में। उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 वाला तो ये पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ उनका था डिस्काउंट देने के बाद भी। फिर क्या किया, बचा हुआ 80,000 के फिर भी बचे अभी, उनका क्या किया, रिमेनिंग 80,000 का क्रेडिटर से उसका remaining creditors were paid at 90% in final settlement। 90% यानी 10% का डिस्काउंट मिला, 8,000 कम हो गया, तो इनका पेमेंट हो जाएगा 72,000 का। तो चाहे तो एक ही एंट्री कर सकते हैं, चाहे दो एंट्री कर सकते हैं। एक ही एंट्री में कर देंगे तो 82,000 हो जाएगा मिला के, 72,000 प्लस 10,000 टोटल मिला के 82,000 की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप चाहे तो दो कर सकते हैं, पहली वाली एंट्री 10,000 की और दूसरी वाली 72,000। क्लियर है सही राम?
Yes, sir. इस वे भी Yes, sir. तो सारी एंट्री इसी तरीके से करनी है आपको। आप प्रैक्टिस करिए इसको। कोई डाउट होता है किसी एंट्री में, वैसे तो आ जाएंगी ज्यादातर, किसी एक आध एंट्री में आपको कंफ्यूजन होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। सर बोलिए। सर 16th का ए समझा दीजिए एक बार। 16 का ये ठीक है। ओके 16 का ये है, there was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured of rupees 18,500. An acceptor of one of bill of 2,500 became insolvent and 50 paisa in a rupee was recovered. The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored has not so far been recorded. ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। There was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured of rupees 18,500. अच्छा 18,500 के बिल डिस्काउंट कराए थे, उसकी लाइबिलिटी थी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। An acceptor of one bill of 2,500 became insolvent and 50 पैसा in a rupee was recovered, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है कि हमारी लाइबिलिटी नहीं है लेकिन लाइबिलिटी बन सकती है फ्यूचर में, ठीक है। हमने गारंटी दी है, कुछ किया है, तो कुल मिलाकर 18,500 रुपए के बिल थे, उसमें जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई हमारी वो केवल 2,500 की क्रिएट हुई। जो डेब्टर थे जिनको बिल का पेमेंट करना था उनको, उनमें से 2,500 रुपए का एक वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसमें से भी हमको, उसमें से जो पेमेंट मिल गया 1,250 का तो पेमेंट मिल गया बैंक को, बचा गया जो 1,250 है उसका हमको पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपको ये 1,250 रुपए की एंट्री करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही राम? यस सर। ठीक है, ओनली 1250 करेंगे। जो पैसा नहीं मिलेगा बैंक को, इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि हमने गारंटी दी थी उसकी, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसमें से 1,250 तो मिल ही गया उसको, तो बैंक का जो लॉस होगा वो हमको देना पड़ेगा क्योंकि हमने उसकी गारंटी दी होगी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हमारी है। तो नाउ इट हैज बिकम ओवर लायबिलिटी, तो हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मान के इसका 1,250 रुपए का पेमेंट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके सर। तो सर एंट्री क्या होगी सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट जो भी लिखना है। यस सर। ठीक है सर एक डाउट था सर, एक और आगे बोलिए। सर ये 17th का डी है सर, देव और पार्टनर। अच्छा देखता हूँ एक मिनट रुको। 17 का डी देव पार्टनर ही है ना, देव पार्टनर, इसी की बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है। देव पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर ₹7,500। उससे हमने एग्रीमेंट किया कि तुम डिसोल्यूशन का सारा काम करोगे, उसके बदले हम तुमको 7,500 रुपए दे देंगे, ठीक है। He took away the stock of the same amount as his commission. The stock had already been transferred to realization account. बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक तरह से उसको हमको 7,500 रुपये देना था, तो हम एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते 7,500 की। अब उसने स्टॉक ले लिया 7,500 का, तो एंट्री करेंगे देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक कैंसिल हो जाएगी, कोई एंट्री नहीं बचेगी इसके लिए। अनुराग? यस सर। एक तरह से वो हो गया ना कि क्रेडिटर सेटल्ड बाय एन एसेट, है ना, एक क्रेडिटर बन गया। या तो फिर दो एंट्री करो उसके लिए, पहली एंट्री तो करोगे उसका रिमेम्बरेशन के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉन्ड बाय देव, और दूसरा एंट्री करेंगे फिर देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक टेकन बाय देव, या फिर कोई एंट्री नहीं करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से मान सकते हैं कि क्लेम इज सेटल्ड बाय द असेट, लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय द असेट। क्लियर है?
यस सर। ठीक है हाँ। सर हाँ जी बोलिए। सर जो 16 का ए आपने बताया है उसकी पीछे एंट्री दी गई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय 2500 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1250। अच्छा अच्छा, दो एंट्री की है इसमें। नहीं सर, जो आपने बताई ना सर, वो हाँ। कि इसमें इसी एंट्री को काट देंगे तो सर वही एंट्री बन जाएगी, क्योंकि हाँ सर हाँ बैंक हाँ। टू। यस सर। पीछे क्या दिया इसने? पीछे एंट्री दी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1250। हाँ, अब देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा 2500 कहाँ से मिला हमको। एन एक्सेप्टर ऑफ वन ऑफ द बिल ऑफ रुपीज 2500 बिकम इंसॉल्वेंट, है ना, एंड 50 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड। 2500 तो हमको मिलेगा कहीं इसमें? आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें ऐसा कुछ। पीछे एंट्री की है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे की एंट्री इसकी? रीजन तो लॉजिक तो समझ में आना चाहिए। देयर वाज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। देखो ये क्या होता है, बिल डिस्काउंट कौन सा कराते हैं? हमको किसी से बिल मिला था, तो मेरा आपने लास्ट ईयर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था ना, तो हमको बिल रिसीव हुआ, तो ड्रॉअर के पास ऑप्शन होता है कि चाहे तो बिल को डिस्काउंटिंग करा सकता है, ये होता है ना सही राम? यस सर। तो बिल डिस्काउंटिंग जब हो जाता तो उसमें होता क्या है कि जब मैच्योरिटी उसकी आती है तो जो ड्रॉई होता है वो पेमेंट बैंक को करता है सीधा, पढ़ा था ना लास्ट ईयर आप लोगों ने। ड्रॉई मेक्स पेमेंट टू द बैंक, इसलिए डिस्काउंटिंग के बाद पेमेंट की एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में नहीं की थी हमने। अब यहाँ पर 18,500 रुपए के बिल मिले थे हमको, हमने डिस्काउंटिंग करा लिया बैंक से, है ना। तो जब बैंक ने डिस्काउंटिंग कराया मतलब हमने बैंक से पैसा ले लिया, तो वो हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है कि अगर वो लोग बैंक को पैसा नहीं देंगे तो हमारी जिम्मेदारी हम बैंक को पैसा देंगे, दैट इज द पर्पज हियर। हम लोग बैंक को पैसा देंगे, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब हुआ क्या, उस 18,500 में से कोई एक कस्टमर है जिसका एक बिल था 2,500 का, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हम पहले 2,500 बैंक को दें और 1,250 हमको मिल जाए। क्या किया इसने? पहली एंट्री हो सकती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसने क्या किया है? यस सर, यही यही है सर। किया है। हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ठीक है। 2500 रुपए का पहले हम बैंक को दे दें, क्योंकि वो बैंक को तो मिला ही नहीं पैसा, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को हमने गारंटी दी थी 2500 की, है ना। हमारी लायबिलिटी बन गई, वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी बन गई क्योंकि उसने तो पैसा दिया नहीं। तो पहली एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट ही करिए, बैंक को देना तो पैसे हैं। और दूसरा हमको पैसा मिल जाएगा उससे, 50% पैसा जो मिला वो हम ले लेंगे उससे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? यस सर। हाँ अनुराग, आपका जो मैंने बताया वैसे ही कुछ और ट्रीटमेंट है उसका? नहीं सर, जो आपने कहा ना सर, मैं वही कह रहा था कि अगर दोनों एंट्री को हम कट करने की कोशिश करेंगे, एक एंट्री बनाने की कोशिश हाँ तो उसका करेंगे, इफेक्ट जीरो हो रहा है तो ना, वही हो जाएगा सर। इसका इफेक्ट जीरो हो रहा है, इसलिए हम चाहे तो, और सेफ साइड में बोलूंगा 2 एंट्री कर दो आप, क्योंकि पता नहीं कोई बैठा होगा झपकी आदमी बोलेगा एंट्री नहीं की इसकी, तो मार्क्स नहीं देगा उसके। यस सर। समझ में आ रहा है? वो उसको एंट्री चाहिए। वो कई लोग तो समझते नहीं है, कई लोग तो मार्किंग स्कीम देख के कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने बोला जैसा मार्किंग स्कीम लिखा वैसे ही करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे नहीं वो, तो फिर वो ऐसे लोग मार्क्स खा जाएंगे आपके बाद में। बोला कैसे एंट्री नहीं की, मार्क्स नहीं दूंगा इसको। ऐसा लगता है इनके घर की जागीर है, मार्क्स ना तो देंगे नहीं उसमें से, है ना। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एंट्री करना है। अब मेन क्वेश्चन तो आज हो नहीं पाएगा, तो हम कल ही करेंगे मेन क्वेश्चन इसके। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, क्योंकि प्रोसेस सबका यही है, जो हमने अभी एंट्रीज में किया वही प्रोसेस है, बस उनको हम अकाउंट के फॉर्म में लिखेंगे, देन वी कैन पास द वी कैन मेक द नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी तो मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ एंड कमिंग बैक टू द मीट। दिस इज वेरी बैड सिचुएशन दैट वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन आवर क्लास। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ये बड़ा बेकार सिचुएशन है, इट शुड नॉट हैपन, है ना। व्हाई इज इट हैपनिंग आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट ए गुड सिचुएशन। आप इस सेक्शन में देखो तो वहाँ 90% अटेंडेंस आती है, 95%, 99% अटेंडेंस आती है, हमारा तो 50% भी नहीं है आज। सो दिस इज वेरी बैड सिचुएशन। You have to attend only 3 classes in a day,
और उसमें भी अगर घर बैठ के नहीं अटेंड कर सकते तो क्या करोगे? ठीक है, बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी रहती है कि हमने तो सब पढ़ लिया, सब आता है हमको, तो यार क्या बोल सकता हूँ उनके लिए, भगवान ही उनको समझा सकते हैं। एंड दिस इज द मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। जब बच्चा घर पे है, आप देख रहे हो उसको, तो बताना चाहिए कि आप क्लास में अटेंड कर रहे हैं, बोर्ड क्लास है आपकी, यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट योर क्लास, है ना। ओके, तो मैं अभी अटेंडेंस लगाना चालू किया है, बात करूंगा इन पेरेंट्स से जिनके बच्चे नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं अटेंड करें तो अच्छी बात है, घर बैठो आराम से, नहीं करना तो कोई बात नहीं, जो आएंगे उनको अटेंड, वो पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। ओके, सो साई राम, लेट अस have शांति पाठ, देन you can leave. ओम शांति शांति शांति। साई राम। हाँ जी बोलो। सर एक डाउट था हाँ सर। बोलो सर। सर वो बिजनेस में था सर। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। सर जो आपने कल पढ़ाया था सर, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, हाँ जी, सर उसमें एक पॉइंट था सर, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, हाँ हाँ ठीक है। पर सर जॉब सिक्योरिटी तो एक एम्प्लॉय को सर डीमोटिवेट भी करती है सर, जैसे हम गवर्नमेंट जॉब्स में देख सकते हैं सर। नहीं, वो एक नेगेटिव उन्होंने लोगों ने यूज किया उसका, हालांकि पर्पज उसका ये नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लोग अच्छे से काम करेंगे, है ना। जॉब सिक्योरिटी देते इसलिए है कि लोग टेंशन फ्री रहे अच्छे से, वो लोगों ने मिसयूज किया जॉब सिक्योरिटी का बेसिकली, है ना। हालांकि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन सही है कि प्राइवेट में लोग अच्छा काम करते, कभी डर होता है नौकरी चली जाएगी, और गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी होती है तो वो लोग काम नहीं करते। दैट इज मिसयूज ऑफ द सिक्योरिटी है, वो नेगेटिव वे में ले गए लोग उसको। पर्पज उसका ये था कि जब उसको पता रहेगा कि नौकरी मेरी पक्की है तो फिर वो मन लगा के काम करेगा, अच्छा काम करेगा, है ना। तो उसकी बात नहीं करें, हम लोग ये मान के चले कि जॉब सिक्योरिटी अच्छा होता है, क्योंकि वैसे देखें आप प्राइवेट सेक्टर में बात करो तो लोग क्या चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी मिली रही तो चाहते हैं लोग, कोई रोज नौकरी नहीं छोड़नी पड़े उनको, ठीक है। और ये जॉब सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट नई वाली जनरेशन में तो वैसे भी नहीं काम कर रहा है। नई जनरेशन जो है वो जॉब सिक्योरिटी चाहती नहीं है। नई जनरेशन स्पेशली जो टेक्निकल लाइन में बच्चे जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, वो तो खुद ही चाहते हैं कि एक कंपनी में 5 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे, ज्यादा सैलरी मिलेगी। सो दे कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम दिस कंपनी टू दैट कंपनी। बट ये अच्छा है, हम उसको अभी कंटिन्यू करेंगे जब तक कुछ तो इम्पैक्ट है उसका जॉब सिक्योरिटी का। इट इज नॉट यूजलेस, है ना। लोगों से सपोर्ट मिलता है, लोगों को मेंटल सपोर्ट रहता है कि जॉब सिक्योर है हमारी। एंड कुछ लोग तो होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट में भी देखो तो हो सकता है 60% नहीं करते हो, लेकिन 40% लोग तो करते हैं उसकी वजह से काम। ठीक है सिद्धार्थ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर एक और एंट्री है बिल से रिलेटेड, उसमें पूछा है देयर वाज अ बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम who became insolvent and a first and final dividend of 25% was received from his estate। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? मुझे तो हमें नहीं याद, तुमने क्या बोल दिया मुझे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन बताओ, मैं देखता हूँ उसमें। सर 8.50 पर, 8.50 पेज नंबर 8.50। 8.50, ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर। सर 11th क्वेश्चन पार्ट ई। अच्छा ठीक है। देयर वाज अ बिल फॉर ₹1200 अंडर डिस्काउंट, ठीक है, हमने डिस्काउंटिंग कराया था बिल 1200 का। द बिल वाज रिसीव फ्रॉम सोहम, है ना, ठीक है, इससे बिल मिला था, ये इंसॉल्वेंट हो गया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड सेम एंट्री होगी, कोई सेम अभी की ना हर्षद ने। तो 1200 रुपये हम बैंक को देंगे पहले, क्योंकि हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी, वो अब लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1200, और 300 रुपये हमको मिलेगा उससे 25% ऑफ 1200। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 हमारा उसमें आ जाएगा, ठीक है। सर एक छोटा सा डाउट था हाँ सर, क्योंकि इस ये जो एंट्रीज है इनमें बिल डिसऑनर हो रहा है, तो हमें डिसऑनर की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती।
डिसऑनर की एंट्री तो करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे? डिसऑनर की एंट्री में तो ये तो करते हैं हम लोग, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना? डिसऑनर की एंट्री तो करते हैं, डिस्काउंटिंग के बाद डिसऑनर की एंट्री करते हैं ना हम लोग, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी बैंक की लायबिलिटी हमारी उतनी बन गई जितना बिल दिया था हम लोग। पहले हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जब डिपॉजिट किया था तब। जब डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे आप? करते हैं ना ड्रॉई डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक को क्रेडिट किया, मतलब बैंक को पैसा देना, उतना बैंक आपको क्रेडिटर बन गया उतने रुपए के लिए। क्रेडिटर बन गया तो पेमेंट करना पड़ेगा उसको उतना। ठीक है? Yes, sir. ओके। सर हाँ जी, सर एक प्रोविजन का पूछना था कि सर प्रोविजन का क्या करते हैं हम? प्रोविजन को ट्रांसफर करते हैं और कुछ नहीं करते, बस पेमेंट नहीं करते हैं। जितने प्रोविजन है वो सब ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटी साइड में, नहीं क्रेडिट साइड में, और पेमेंट नहीं करना उनका। ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट आ गया, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा अपने अभी, वो आपके बढ़ गए अपने अभी। इनडायरेक्टली वो पेमेंट नहीं करना बस उनका। यस सर। जितने प्रोविजन है वो सब रियलाइजेशन में क्रेडिट में चले जाएंगे, बट पेमेंट नहीं करेंगे उनका। वो इंटरनल है, किसी को पेमेंट नहीं करना होता उनको। यस सर। ठीक है। बिजनेस में सर जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है सर, हाँ। उनमें फीचर और एडवांटेज सर बहुत कंफ्यूज करते हैं सर। 4-5 फीचर एंड एडवांटेज बहुत कंफ्यूज करेंगे, वो आपको रटने पड़ेंगे एक तरह से। कुछ उसका शॉर्ट नोट बना के रखो, उसको रिवाइज करो बार बार तो याद होंगे आपको, है ना? सर क्योंकि वो हर एक में कुछ तो कॉमन ही है, हर एक में ही आ रहे हैं। ठीक है?